Hello dear students, myself Rahul Mishra and today we will discuss some important common salts. So what is common salts? So common salts means that salt which are used in our daily life like plaster of Paris, baking soda, washing soda, potash alum. So listen, bleaching powder, all these are some important common salts. So listen, first we will discuss plaster of Paris. So what is plaster of Paris? So it is a common salt whose shortcut name is POP. POP means plaster of Paris. We all know about plaster of Paris. Now we will discuss. So the chemical name of plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate. So calcium sulfate hemihydrate is the chemical name of plaster of Paris. Its chemical formula is totally based on in its chemical name. So listen. So the chemical formula of plaster of Paris is totally based on the chemical name of POP or plaster of Paris. So listen, calcium sulfate. Calcium sulfate means CaSO4. Calcium sulfate means CaSO4. Hemi means half. Hydrate means water. It means half water. So calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate means CaSO4. Hemi means half या आधा and hydrate means water. So CaSO4 dot half H2O, it is the formula of plaster of Paris. Now its second formula is CaSO4 का whole of twice dot H2O. So listen, this is CaSO4 का whole of twice dot H2O. So we have a trick. So listen, when one molecule of calcium sulfate is taken, जब कैल्शियम सल्फेट का कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, हाफ मॉलिक्यूल है. इट मीन्स जब कैल्शियम सल्फेट एक मॉलिक्यूल होगा तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल होगा, आधा मॉलिक्यूल होगा. इट सिमिलरली अगर कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल है तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल होगा, आधा. दो का आधा कितना होता है, 1. इट मीन्स वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1. सो लिसन, अगर कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है तो वाटर का आधा मॉलिक्यूल होगा, और अगर कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल है तो वाटर का 1 मॉलिक्यूल होगा. सो लिसन, हम कैसे याद कर सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट का जितना मॉलिक्यूल है उसका आधा क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा. सो लिसन, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O और CaSO4 का होल ऑफ ट्वाइस डॉट सिंगल H2O. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. नाउ वी विल डिस्कस what is the method of preparation. It means जो plaster of Paris है इसको कैसे बनाया जाता है, what is the method of preparation. So listen, plaster of Paris is obtained by gypsum. plaster of Paris को एक substance gypsum से बनाया जाता है. So when we heat gypsum at 150 to 160 degrees Celsius, then POP और plaster of Paris is obtained. It means जब जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है तो जिप्सम चेंज हो जाता है किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में या POP में. सो लिसन, वी कैन अंडरस्टूड इट फ्रॉम दिस रिएक्शन. सो दिस रिएक्शन इज द method of preparation of plaster of Paris or POP. So listen, you can see in this reaction
इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिप्सम and these 2 molecules of gypsum are heated at 150 to 160 degree Celsius temperature. So this is delta. Our triangle sign is delta. Delta means heat. Delta means heat. So listen, when we heat 2 molecule of gypsum, then plaster of Paris is obtained. So this is the formula of plaster of Paris, and there is removal of 3 molecules of water. It means we can say जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल को हीट करते हैं 150 से 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनती है। और इस रिएक्शन में 3 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। सो लिसन, now we will discuss what is gypsum. So what is the formula of gypsum? So the formula of gypsum is CaSO4.2H2O. This is the formula of gypsum, CaSO4.2H2O. So CaSO4.2H2O ये किसका फार्मूला है, जिप्सम का फार्मूला। So this is called as calcium sulfate. Calcium sulfate dye. Dye means दो. Dihydrate. Hydrate means water. It means calcium sulfate dihydrate. This is the formula of gypsum. So calcium sulfate dihydrate, you can see this is the formula of gypsum. And we take how many molecules of gypsum? हमको जिप्सम के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, हमें जिप्सम के चाहिए 2 मॉलिक्यूल। वी रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिप्सम। हमें जिप्सम के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो हमने 2 मॉलिक्यूल किसके ले लिए, जिप्सम के। तो जिप्सम के मॉलिक्यूल्स को हमने ब्रैकेट में लिया है और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया। इट मीन्स देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट dihydrate. When 2 molecules of gypsum are heated at 150 to 160 degrees Celsius, then plaster of Paris is obtained. And we all know that this is the formula of plaster of Paris as we have earlier discussed. जैसा कि हम पहले इस फार्मूले को डिस्कस कर चुके हैं। This is the formula of plaster of Paris or POP. ये POP या plaster of Paris का फार्मूला है। इसमें कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल होंगे तो वाटर का 1 मॉलिक्यूल होगा। जबकि आप जिप्सम में देख सकते हैं, इन दिस केस देयर इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट बट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ कैल्शियम सल्फेट का अगर 1 मॉलिक्यूल है तो वाटर के हमने 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट फार्मूला ऑफ जिप्सम। बट हमें जिप्सम के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। इसलिए हम जिप्सम के मॉलिक्यूल के सबसे बाहर क्या लगाएंगे, 2। सो लिसन, यू कैन सी, यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। सो लिसन, इन दिस रिएक्शन हाउ मेनी कैल्शियम सल्फेट आर प्रेजेंट। यहाँ कैल्शियम सल्फेट कितने हैं, यहाँ 2 कैल्शियम सल्फेट हैं। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कैल्शियम सल्फेट है और 2 2 जा 4 क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। इट मीन्स यहाँ 2 कैल्शियम सल्फेट है और 4 क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है। सो दीज वाटर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो जिप्सम में ये .4H2O लिखा है, इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, पीओपी बनती है और पीओपी बनने के साथ साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 3 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सो यू कैन सी इन द प्रोडक्ट साइड देयर इज 2 CaSO4 इन लेफ्ट साइड एंड देयर इज 2 CaSO4 इन राइट साइड। इट मीन्स जो CaSO4 है वो लेफ्ट साइड में जितने हैं उतने ही राइट साइड में है। तो CaSO4 यहाँ पर दोनों साइड में क्या है, बैलेंस है। अब हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की।
सो इन लेफ्ट साइड देयर आर 4 वाटर मॉलिक्यूल। लेफ्ट साइड में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 4, जिनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बट यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? .1H2O। यहाँ केवल 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्योंकि 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गए हैं? बाहर निकल गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाते हैं, केवल 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचता है, जो कि पीओपी के फॉर्मूले में आता है। सो लिसन, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम सल्फेट इज बैलेंस्ड because calcium sulfate in left side is 2 and in right side calcium sulfate is also of 2 unit। यहाँ भी कैल्शियम सल्फेट कितने यूनिट है? 2 यूनिट, क्योंकि CaSO4 के बाद ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है? 2। इट मीन्स यहाँ कैल्शियम सल्फेट कितने यूनिट है? 2 यूनिट। लेकिन वाटर कितने यूनिट है? 1 + 3 मीन्स 4 यूनिट। इसका मतलब 4 यूनिट लेफ्ट साइड में वाटर है और राइट साइड में भी कितना है? 1 + 3 मीन्स 4 यूनिट। इट मीन्स रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। इसलिए ये रिएक्शन क्या है? कंप्लीटली बैलेंस्ड है। सो लिसन, नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस और द प्रॉपर्टीज ऑफ POP। सो लिसन, वी ऑल नो दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट कलर्ड पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट कलर का पाउडर होता है। एंड लिसन, सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इट मीन्स ये वाटर में कम सॉल्युबल होता है। इट इज स्पेरिंगली, स्पेरिंगली मीन्स अल्प मात्रा में या कम मात्रा में। इट मीन्स इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इट मीन्स यह वाटर में कम मात्रा में घुलता है या सॉल्युबल होता है। Now third property is very important. It is most important property. Effect of heat on plaster of Paris. It means what is the effect of heat on plaster of Paris? इसका मतलब क्या है कि plaster of Paris पर heat का क्या effect पड़ता है? So question can be asked into this form. Question इस form में भी पूछा जा सकता है। What happens when? It means क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हीटेड। इट मीन्स जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट किया जाता है। इट मीन्स व्हाट हैपेंस व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हीटेड। इट मीन्स क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट किया जाता है। देन लिसन, यू हैव टू राइट दिस केमिकल रिएक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट ऑन POP। इट मीन्स तब आपको ये केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इफेक्ट ऑफ हीट ऑन POP की। सो लिसन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन POP व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हीटेड। इट मीन्स जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट किया जाता है एट 200 डिग्री सेल्सियस। किस टेम्परेचर पर? 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। देन लिसन, plaster of Paris is heated when 200 degree Celsius temperature, then it will form gamma form of CaSO4. And listen, there is removal of 1 molecule of water of crystallization. It means जब POP को या प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करते हैं किस टेम्परेचर पर? 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक मॉलिक्यूल होता है ये निकल जाता है और क्या बनता है? 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल बनते हैं। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 CaSO4 मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज कॉल्ड एज गामा फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। नाउ अगेन व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हीटेड अप टू 600 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स अगर हम इसे 600 डिग्री सेल्सियस तक क्या करें? गर्म करें। देन लिसन, दिस CaSO4 गेट चेंजेस इनटू इट्स बीटा फॉर्म। तो जो CaSO4 या कैल्शियम सल्फेट है वो अपनी बीटा फॉर्म में चला जाता है। नाउ लिसन, व्हेन इट इज हीटेड एट 1100 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स जब इसे हम और ज्यादा हीट करते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस तक। इट मीन्स 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक
या हाई टेम्परेचर पर, तो क्या होता है, देन CaSO4, देन बीटा फॉर्म ऑफ CaSO4, दिस बीटा फॉर्म ऑफ CaSO4 गेट ब्रेक, ये टूट जाता है एंड इट विल गेट ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये किसमें टूटता है, CaO में, और SO3 क्या होती है, अलग निकल जाती है। इट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सॉल्यूशन, व्हेन वी हीट plaster of Paris, then at 200 degree Celsius, when it is heated, then gamma form of CaSO4 is obtained. When 600 degree Celsius, at 600 degree Celsius POP is heated, then beta form of CaSO4 is obtained, and at 1100 degree Celsius, then POP decomposes, or beta form of CaSO4 decomposes into कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इट मीन्स पीओपी को जब हीट करते हैं तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज इफेक्ट ऑफ हीट। जैसे कि हीट का इफेक्ट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस पर इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह रिएक्शन विद वाटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो व्हाट इज द रिएक्शन विद वाटर? So listen, this reaction is called as setting and hardening of POP. It means इस रिएक्शन को हम लोग सेटिंग या हार्डनिंग ऑफ पीओपी भी कहते हैं। वाई? बिकॉज व्हेन पीओपी रिएक्ट्स विद वाटर, इट मीन्स जब पीओपी क्या करती है, वाटर से रिएक्ट करती है, देन पीओपी सॉलिडिफाइज, तो पीओपी जो है वो सॉलिडिफाई होने लगती है या ठोस के फॉर्म में चेंज होने लगती है, एंड इट बिकम्स हार्ड, और ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे कुछ देर तक छोड़ देने पर ये हार्ड हो जाती है। सो लिसन, व्हेन पीओपी रिएक्ट्स विद वाटर, इट मीन्स जब पीओपी वाटर से रिएक्ट करती है तो पीओपी धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगती है जब हम उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, एंड इट बिकम्स हार्ड, और ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और पीओपी हार्ड होने के बाद जम जाती है, इट मीन्स इट सेट, इट मीन्स ये क्या हो जाती है, जम जाती है। सो लिसन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ पीओपी। इस प्रोसेस को इसीलिए क्या कहा जाता है, सेटिंग और हार्डनिंग ऑफ पीओपी। इट मीन्स इस प्रोसेस को हम लोग सेटिंग या हार्डनिंग ऑफ पीओपी भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में पीओपी जमती है और हार्ड मास सब्सटेंस बनाती है, या जमने के बाद हार्ड हो जाती है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ पीओपी। एंड लिसन, हार्ड मास सब्सटेंस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज जिप्सम। इट मीन्स जो हार्ड मास का सब्सटेंस बनता है वाटर से रिएक्ट करने के बाद, जब पीओपी सॉलिडिफाई होती है और कुछ समय के लिए जब उसे छोड़ दिया जाता है, तो वो जम के एक हार्ड मास का सब्सटेंस बनाती है, और उस हार्ड मास के सब्सटेंस को कहते हैं जिप्सम। दैट हार्ड मास सब्सटेंस इज कॉल्ड एज जिप्सम। एंड लिसन, इन दिस रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। इट मीन्स इस रिएक्शन में हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, या रिलीज होती है, या एवॉल्व होती है। So listen, we can understood it, the reaction of POP with water from this reaction. It means POP की वाटर से रिएक्शन को हम इस केमिकल रिएक्शन से समझ सकते हैं। So listen, this is plaster of Paris, CaSO4 का whole of twice dot single H2O plus water means 3 H2O, then it will form 2 molecules of gypsum. So this process is called as setting and hardening of POP. Setting and hardening of POP. Setting and hardening of plaster of Paris.
तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो पीओपी जब वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, जिप्सम। और जिप्सम को अगर हम हीट कर दें, जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल को अगर हीट कर दें तो होगा क्या, जिप्सम से बन जाता था पीओपी प्लस वाटर। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, इसकी जो रिवर्स रिएक्शन है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीओपी है। इट मीन्स जिप्सम से पीओपी कैसे बनती थी ये अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन है। वहां पर 2 मॉलिक्यूल हमने किसके लिए थे, जिप्सम के, और उसको हीट किया था 150 से 160 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमको क्या मिला था, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया था और 3 मॉलिक्यूल मिले थे वाटर के। इट मीन्स अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाली रिएक्शन को अगर पलट दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो होगा क्या, हमें रिएक्शन मिल जाएगी, रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर। इट मीन्स हमको रिएक्शन मिल जाएगी, रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर। इसका मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाली रिएक्शन अगर याद करें तो रिएक्शन ऑफ पीओपी विद वाटर ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन ऑफ पीओपी विद वाटर क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिवर्स रिएक्शन है। क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। और इसे ही सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ पीओपी भी बोलते हैं। तो पीओपी जब वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, जिप्सम बनाती है, जो कि क्या होता है, हार्ड मास सब्सटेंस होता है। ये बहुत कठोर सब्सटेंस होता है, जो कि बहुत ज्यादा कठोर होता है। जैसे सीमेंट जमने के बाद बहुत हार्ड हो जाती है, उसी मैनर में जो पीओपी भी है वही जमने के बाद बहुत हार्ड हो जाती है और हार्ड मास सब्सटेंस बनाती है। एंड दिस हार्ड मास सब्सटेंस इज कॉल्ड एज जिप्सम। और इसी हार्ड मास सब्सटेंस को क्या कहते हैं, जिप्सम। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ पीओपी। इसका मतलब अगर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन पढ़ रखी है, जिप्सम से पीओपी बनाना, तो पीओपी, जिप्सम से पीओपी और वाटर बनता था, तो पीओपी और वाटर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। इसका मतलब पीओपी जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ पीओपी। सो व्हाट आर द यूजेज ऑफ पीओपी, पीओपी के क्या यूज हैं, सॉल्यूशन इन मेकिंग स्टैचूज। इट मीन्स मूर्तियों को बनाने में, मूर्तियों को बनाने में पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। सेकेंड, इन द सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। इट मीन्स टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। एंड दे यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उस प्लास्टर में डॉक्टर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं और फ्रैक्चर्ड बोन्स या टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देते हैं। सो इन मेकिंग स्टैचूज, इन सेटिंग ऑफ fractured bones. So these are the 2 uses of plaster of Paris. And listen, third use is in making fireproof materials. It means fireproof material मतलब अग्नि सह पदार्थ बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। इट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम ऐसे सब्सटेंस बना सकते हैं जो कि फायर प्रूफ होंगे, उन पर आग का या फायर का असर नहीं पड़ता। सो दिस वाज द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड दिस इज द फर्स्ट कॉमन सॉल्ट इन योर सिलेबस।